الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم نے نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں سیکھا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر کہ جب تک ہم پریکٹیکل اس چیز کو نہیں سمجھائیں تب تک جلدی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اور مسائل واضح نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم سب نے یہ چیز سوچی کہ اس میں جو ہے کیا طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کا کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے لیفٹ سائڈ میں دیکھیے کیا ہے، بعد ان یأتی بشروط الصلاة یقول اللہ اکبر، یعنی جب سارے شروط پورے ہو جائیں، جب سارے شروط پورے ہو جائیں تو کہنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا۔ ہم نے حدیث میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے، پہلی تکبیر کہتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اس میں ایک مسئلہ تھا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیے جس پہ رونگ لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک کان کو چھو رہے ہیں، ایک جو ہے ہاتھ کو ایسے گول کر کے اٹھائے ہوئے ہیں، مطلب ہاتھ بالکل سیدھے، ایک صرف سینے تک اٹھائے ہیں ہاتھ کو، اور دوسرے ایسے پنجے کھول کے اور بالکل جو ہے عجیب طریقے سے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں طریقے صحیح نہیں ہیں۔ یہ اکثر سستی کاہلی کے بنا پر ہاتھ ایسے اٹھا دیتے ہیں لوگ، خصوصاً جو اس میں دکھایا گیا ہے کہ بالکل یعنی جو سستی رہتی ہے تو ہاتھ کھولتے نہیں ہیں اور ہاتھ کو بالکل ایسے، اور بعض خشوع و خضوع میں اتنے مل جاتے ہیں یا خشوع و خضوع میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ جیسے دیکھیں آپ فٹ والی کی 5 پنجے پورے 10 پنجے کھول کے اس طریقے کے اللہ خیر کرے، تو یہ چاروں کے چاروں صحیح نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، یا تو کندھوں کو اٹھائیں گے، دیکھیے فرسٹ کندھوں تک اٹھا ہوا ہے، یہ کندھوں تک کا طریقہ ہے، ہاتھ نہیں، مطلب کندھوں تک کا یہ ہرگز نہیں کندھے کے پیچھے آپ کے ہاتھ سے، بس کندھوں تک آپ کے ہاتھ اٹھ جائے۔ ایک ہے کان کے اٹھے ہوئے، کان تک اٹھے ہوئے ہاتھ، لیکن کان کو ہاتھ نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کان کو ہاتھ لگانا یہ کس سے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی، اور اس کے بعد پاؤں کیسے رکھنا ہے، سیکنڈ دیکھیے پاؤں کس طریقے سے آپ کو رکھنے ہوتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَمَا بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَيُسَوِّي خَارِجُهُمَا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دونوں پیر آپ کے مطلب پورے جسم کی حیت یعنی آپ کے کندھوں کے برابر رہنے چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ آپ کے جو کندھے ہیں، آپ اپنے کندھے کے حساب سے نہیں، آپ کا کندھا جہاں تک ہے وہیں سے لے کے نیچے تک آپ کے پیر ہونے چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لمبا کھینچ دیتے ہیں، جیسے دیکھیے اس میں ہے بڑے پاؤں کھول کر رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی چپکا کر، یہ خصوصاً عورتوں کی صفت ہوتی ہے، وہ نماز میں جو کھڑی ہوتی ہیں بالکل پیروں کو ایک دم قریب کر کے کھڑی ہوتی، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نماز ایسے پڑھیں جس پہ آپ کا بیلنس بالکل برقرار رہے، اور ایسا نہ لگے کہ زیادہ پیر کھلے ہوئے ہیں اور ایسا نہ لگے کہ زیادہ پیر اندر۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف اپنے پیر نہیں کرتے، ایسے پیر یوں گھما کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے لگ رہا ہے پتہ نہیں بس سستی میں کوئی زبردستی لا کے کھڑا کر دیا، کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
इसके बगल पहली तस्वीर लगाइए। हाँ ये। यहाँ पर एक चीज समझाई गई है आपको पहली तस्वीर के अंदर, जबकि पहली तस्वीर पे के यसुन अन युसल्लिल इमाम वल मुनफरिद इला सुतरा व सुतरतुल इमाम सुतरतुल लिमन खलफहू व यजअलु बसरहू इला मौज़ि सुजूदी वला वला यतलफ़त। कहने का मतलब है कि इमाम को चाहिए कि वो, इमाम हो या मुनफरिद हो, अकेले नमाज पढ़ रहा हो, वो सुतरे के साथ नमाज पढ़े। और इमाम का सुतरा, पीछे जितने लोग हैं सबका सुतरा होता है। और देखना कहाँ है आपको? सजदे की हालत में नीचे, सजदे की तरफ देखना है। क्या कहते हैं, कयाम की हालत में सजदे की जगह देखना है। इधर उधर, उधर निगाह निगाह जा रही, इधर निगाह जा रही है, ऐसे तरीकों से बचना चाहिए। और इसी तरीके से उसके बाद चौथी जो फोटो है, आपको हाथ कहाँ बांधने हैं, क्या तरीकेकार है हाथ बांधने के, उसमें सिखाया गया है। इसमें देखिए इस तस्वीर के अंदर, एक तो हाथ होता है जो हम अक्सर किसी बड़े के सामने या स्कूल वगैरह में खड़े होते हैं ना, बिल्कुल हाथ ऐसे बांध कर खड़े होते हैं, ये तरीका इस्लाम में सही नहीं है। उनमें से एक तरीका ये है कि हाथ को जो है बिल्कुल सीने के पास, एक हाथ को दूसरे हाथ पर उल्टा करके, कि जिस तरीके से बांधे वैसे बांधना, या खास सीने के मुकाम पर हाथ बांधना। बात लोग होते हैं, हम मैंने खुद देखा है, जो सीना होता है बीच में हाथ नहीं बांधते, बिल्कुल यहाँ सीने के पास ले जाकर हाथ को बांध, समझते हैं यहाँ हाथ बांधने से सवाब ज्यादा मिलता है या सीना कंट्रोल, क्या कहते हैं, दिल कंट्रोल में रहता है। नहीं, बिल्कुल सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है इसमें समझाया गया है, देखिए। हाथ को आपको अपनी हथेली को दूसरे के उस पे रखकर अच्छी तरीके से बांधना है, उसको पकड़ लेना है, ये तरीके कार है। इस तरीके से हाथ बांधने के सही तरीका है। एक होता है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, ये किसकी आदत है? ये शियों की आदत है। शिया भी हाथ बांधकर नमाज नहीं पढ़ते, वो हमेशा हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। ये उनका तरीकेकार है, ये उनका अमल है। और ये तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। अगर कोई हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है, ये तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। हाथ छोड़ना, अल्लाह के नबी हाथ बांधते थे, और वो भी सीने पर, नाफ के नीचे वाली। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की हदीस, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल है, लेकिन वो कौल सही नहीं है। उसके बाद आते हैं, आपको मालूम है, उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है, उसकी तिलावत करनी है, वो पता है। फिर छठे नंबर पर आते हैं। छठे नंबर पर रुकू का तरीका, जो मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए, एक तो घुटनों पर हाथ नहीं है तो रुकू खराब, घुटनों पर हाथ है लेकिन हाथ मुड़ा हुआ है, रुकू खराब। ठीक है। या फिर ऐसे झुके हुए हैं कि सही से रुकू भी नहीं किए हुए हैं, बस जिसे कहते हैं दिखावे के लिए झुके हुए हैं, पूरा का पूरा सर ऊपर है कयाम की हालत में, वो भी सही नहीं है। या फिर खुशू खुजू में इतना झुक गए कि लगा कि बस कोई थोड़ा सा ऐसा हिला दे तो सजदे में गिर जाएंगे वो, ये भी तरीका सही। सबसे बेहतरीन तरीका, आपके जो दोनों हाथ हैं वो जब आपके घुटनों पर हो, सीधे हो, आपकी निगाह जमीन पर सजदे की जगह पर हो, और आपकी पीठ और इसी तरीके से सर बिल्कुल सीध में हो, दोनों बिल्कुल बराबर में हो, इधर उधर नहीं होने चाहिए। जरा सा इसमें हाथ टेढ़े हुए सजदा खराब हो जाता है, रुकू खराब हो जाता है। जरा से हाथ नीचे चले गए, रुकू खराब हो जाता है। जरा सा हाथ ऊपर रह गया, रुकू खराब हो जाता है। और सर को ऊपर रखे रहे, रुकू खराब हो जाता है। इसीलिए इस जानिब तवज्जो दें। लोगों में नमाज पढ़ने में इतना खुशू खुशू आता है कि वो नमाज ही को बदल कर रख देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, इतना नहीं झुकना चाहिए। अल्लाह ने जितना हमें समझाया है, अल्लाह के नबी ने जितना बतलाया है, सिर्फ उतना ही। अब यहाँ पर सजदे की हालत देख लेते हैं। सुम्मा मअ रफ़ई व क़ब्ल अल-इअ्तिदाल यक़ूल समी अल्लाहु लिमन हम्दा। सब आपको पता है, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहा जाएगा, फिर थोड़ी देर खड़े रहेंगे, रब्बना लकल हम्द जो लोग सुनेंगे वो कहेंगे, फिर इमाम अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएगा। सजदा देखिए क्या तरीके से करना है। मैंने आपको बताया था, हाथ को नीचे नहीं बिछाना है। हाथ जो है आपके बिल्कुल घुटनों या आपके बिल्कुल सीने के पास जाके नहीं लगना चाहिए।
सजदा ऐसा हो कि हाथ उठे हुए हो, हाथ उठे हुए हो, और आपके पीछे के जो पंजे हैं ना वो मुड़े हुए हो। पीछे के पंजे आपके मुड़े हुए रहने चाहिए और मिल के रहने चाहिए। बीच में जिसे कहते हैं दरार उतनी नहीं रहनी चाहिए। और सजदे की हालत में आपके हाथ बिल्कुल किबले की तरफ सीधे रहे। ये सारे तरीके हैं सजदे के। ये तो आम सी बात है। और उसके बाद जो मसला है वो है आप रुकू का। रुकू, सजदे का ही मसला चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए सजदा, एक साहब सजदा कर रहे हैं, उनके वो अपने पंजों पर है, उनके पाँव एक कर रहे हैं, वो एक के ऊपर एक रखे हो, ये भी तरीका है। बाज लोग ऐसे भी करते हैं सजदे की हालत में, और इसी हालत में बैठ भी जाते हैं। इसी हालत में बैठ भी जाते हैं, एक पंजा एक दूसरे के ऊपर रखकर वैसे ही उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो उनको बड़ी सहूलत होती है उसमें। लेकिन असल तरीका है आपके जो पाँव के जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हुई हो, किबले की तरफ हो, आपके पैर बिल्कुल झुटे हुए हो, मिले हुए हो। ये सजदे का बेहतरीन तरीका है। अब उसके बाद बैठने का तरीका। बैठने के तरीके में मैंने आपको बताया था, देखिए एक है सुरीन के बल बैठना, जो रॉन्ग जिस पे लगा हुआ, देखिए सुरीन के बल बैठे हुए, पाँव को ऐसे फैला दिए हैं और नीचे जमीन पर बैठ गए, ये भी एक तरीका होता है। ये तो सही नहीं है। एक है दोनों पाँव को नीचे बिछाकर बैठ जाना, ये भी सही नहीं है। सही तरीका क्या है? हम और आपने सीखा था कि आपका जो उल्टा पाँव हो, अगर आप दूसरे तशहुद में बैठे हुए हैं, पहले तशहुद में बैठे हुए हैं, तो आपका जो उल्टा पाँव है वो, उसके ऊपर आपको बैठना है। सीधा पाँव आपका खड़ा रहना चाहिए और उसके पंजे मुड़े हुए होने चाहिए, यानी उसका जो उंगलियां हैं उसको आप मोड़ के रखें, किबले की तरफ रखें। ये है सबसे बेहतरीन तरीका सजदा करने का, उस पे तशहुद में बैठने का। और जो आखिरी में, आखिरी तशहुद में जो हम बैठते हैं, जिसे तवर्रुक कहा जाता है, जिसे तवर्रुक कहा जाता है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है, मैंने जैसे बताया, आपका जो उल्टा पाँव है वो नीचे निकलेगा, नीचे नीचे से निकलेगा, और आपका सीधा पाँव उसके ऊपर आएगा, और बिल्कुल पंजे जो है मुड़े हुए रहने चाहिए। ठीक है, पंजे आपके मुड़े हुए होने चाहिए हस्बे इस्तिताअत। हस्बे इस्तिताअत है इसमें, ऐसा नहीं है कि इस्तिताअत है नहीं, मोड़ नहीं सकते आप अपने पाँव को, उंगलियों को नहीं मोड़ सकते। तो आप मोड़, क्या कहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही हो, ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद तशहुद में जब हम बैठेंगे तो हमारे हाथ ऐसे ऊपर होने चाहिए, और आपकी जो तशहुद की उंगली है वो उससे इशारा करते रहना चाहिए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो है उंगली को उठाते हैं, उसके बाद रोक देते हैं, नहीं। उससे आपको इशारा, वो अशारा बि असबिल मुसब्बहा अस्सबाबा वहल्लक अलवुस्ता वल इबहाम युहर्रिकुहुमा यदउ बिहा, युहर्रिकहा यदउ यदउ बिहा, यानी आपको हिलाते रहना है उंगली को। ऐसे भी नहीं हिलाना है कि बिल्कुल स्पीड स्पीड स्पीड, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आराम से उसको हिलाते हैं। लेकिन एक चीज अहम है, जब आप तशहुद में बैठेंगे तो आप सजदे के मुकाम पे नहीं देखेंगे, सजदे के मुकाम पे नहीं देखेंगे, बल्कि आप जो तशहुद की उंगली आपकी है ना, आपकी नजर वहां पे होनी चाहिए। ये कब है? ये जब आप तशहुद में बैठे हुए हैं। बाकी मुकाम पर आपको सजदे में, सजदे की जगह पे देखना है। ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और इसी तरीके से अमल भी करना चाहिए। और लास्ट है जो सलाम फेरने का जो तरीका होता है, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका है, जो क्या कहते हैं, इस मजल्ले के अंदर जिक्र किया गया है, इस वर्क़े के अंदर जिक्र किया गया है। देखिए आप किस तरीके से बाज लोग सजदा करते हैं, खुद थर्ड फोटो आप देखो नीचे, ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे लगता है कि पीछे किसी को बुला रहे हो। लोग करते हैं खुशू और खुजू। इसको आज हमारे माशरे में खुशू और खुजू का नाम दिया गया है। यानी लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए, ऐसे कि बस घूमने में घूम ही गए बिल्कुल जो है।
یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سلام ایسے پھیرتے ہیں کہ بس جسے کہتے ہیں کہ دکھاوے کا سلام ہے۔ نگاہیں ادھر گئیں سلام ہو گیا، نگاہیں ادھر گئی سلام ہو گیا، منڈی گھومتی نہیں، سر گھومتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں؟ جو سر ہے وہ اس طرف نہ کیا کہتے ہیں لیفٹ جاتا ہے نہ رائٹ جاتا ہے، بس نگاہ یوں یوں بس ختم، تھوڑا سا سر ادھر ادھر ہلالتے نہیں۔ بالکل صحیح طریقہ ہے، آپ کے جو کندھے ہیں اس تک آپ کا سر جائے، السلام علیکم کہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر ادھر جائیں السلام علیکم کہیں۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، جس چیز کا مجھے احساس ہوتا ہے کبھی نماز پڑھاتے وقت، وہ یہ ہے کہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے ہی پیچھے سے اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے، یعنی وہ لوگ سلام پھیر کے اللہ اکبر بھی شروع کر لیے، اللہ اکبر استغفر اللہ کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ سلام پھیرتے وقت امام جب السلام علیکم ایک طرف سلام پھیر رہا ہے، آپ انتظار کریں، ابھی سلام نہ پھیریں۔ جب امام دوسری طرف السلام علیکم کہہ رہا ہے، اب آپ پہلی طرف سلام پھیریں، اس کے بعد دوسری طرف سلام پھیریں، تاکہ امام جب ختم کرے اس کے بعد آپ کی نماز ختم ہو، مطلب امام کے ساتھ آپ کی نماز ختم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امام سے پہلے ہی نماز ختم ہو جائے، پوری کی پوری نماز ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ کار تھا جو آج میں نے آپ کو سکھلایا، بتلایا، سمجھایا، اس طریقے سے نماز ہمیں پڑھنی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔